اور ابھی آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں، اس وقت چیئرمین پاکستان علماء کانفرنس حافظ طاہر اشرفی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ صرف حکومت نہیں، ہماری فوج بحیثیت ریاست ہم اپنے فلسطینی اور کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مدارس عربیہ جو تقریباً 30,000 سے زیادہ ہیں، وہاں پر یوم استحصال کشمیر کے موقع پر بھی اور یوم پاکستان کے موقع پر بھی استحکام پاکستان کے عنوان پر اجتماعات منعقد کیے جائیں گے۔ یہ بات بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو 30,000 مدارس ہیں، یہ مختلف وفاقوں کے ساتھ منسلک ہیں۔ وزارت تعلیم کے ساتھ جو 15,000 مدارس نے رجسٹریشن کی ہے، اس کے علاوہ جتنے مدارس ہیں وہ اپنے اپنے وفاقوں کے ساتھ متصل ہیں، اور وہ وفاق جو ہیں وہ حکومت پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔ 85 سے 90% مدارس جو ہیں وہ اپنا آڈٹ بھی کرواتے ہیں، اپنے حسابات بھی دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں محترم ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے جو اس میں 15,000 مدارس کی بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ نیکٹا کی جو معلومات ہیں ان میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ نیکٹا کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے اور ان کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ دور حکومت میں پاکستان کے سلامتی کے اداروں، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی فوج، سب نے مل کر مدارس کے حوالے سے مدارس کی قیادت کے ساتھ اصلاحات مرتب کی تھی۔ ان پر عمل ہو رہا ہے، اور جہاں عمل نہیں ہو رہا مدارس ان پر عمل کرنے کو تیار ہیں۔ ہم ماضی میں بھی کہتے رہے ہیں اور آج ایک بار پھر کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مسجد مدرسہ سے متصل دہشت گردی میں ملوث ہے، انتہا پسندی میں ملوث ہے، شواہد پیش کیجیے، ہم آپ کے ساتھ جا کر اس کو تالا لگا دیں گے۔ یہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ مدارس پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں یہ جو عصری تعلیم کے رزلٹ آئے ہیں میٹرک کے، ملتان لے لیں، لاہور لے لیں، باقی علاقے آپ اسلام آباد پنڈی لے لیں، بہاولپور لے لیں، آپ دیکھیں کہ وہاں پر پہلی پوزیشنیں حاصل کرنے والے مدارس کے طلباء ہیں۔ ہمارے مدارس میں جدید علوم بھی پڑھائے جا رہے ہیں، اور قرآن و سنت کے مطابق جو مدارس عربیہ کا نصاب ہے، جسے درس نظامی، وہ بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو غلط فہمی ایک پیدا ہوئی ہے کہ صرف 15,000 مدارس جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، باقی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ پہلے مدارس ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے ساتھ اور وزارت صنعت کے ساتھ جا کے رجسٹرڈ ہوتے تھے، اب وزارت تعلیم کے ساتھ ان کی ترتیب بنی ہے، اور انشاءاللہ یہ مدارس پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے نے یہ ماضی میں ثابت کیا ہے کہ پاکستان کی سلامتی اور استحکام ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ جب بھی کسی بدبخت نے پاکستان کی طرف نظر بد سے دیکھا ہے، اس کی آنکھ نکالنے میں پاکستان کے مدارس، مساجد، محراب و منبر اپنی افواج اور اپنے سلامتی کے اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں
अगस्त के इस महीने की आमद के मौके पर यह कहना चाहता हूं कि हम पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम देखना चाहते हैं। अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से वजीर आजम ऑफिस ने और DGISPR साहब ने वजाहत कर दी है। ये कोई नया ऑपरेशन नहीं है, ये कौमी एक्शन प्लान पर अमल का नाम है। और अगर कौमी एक्शन प्लान पर अमल हो जाए तो इस मुल्क से इंतहा पसंदी, तशद्दुद, फिरका वाराना तशद्दुद, नफरतें खत्म होंगी और रवादारी पैदा होगी, इत्तिफाक पैदा होगा। माजी में कौमी एक्शन प्लान को सिर्फ मस्जिद के हारन और स्पीकर तक रखा गया। हम कहते हैं आगे बढ़िए, इस मुल्क से नफरतों को खत्म कीजिए, तशद्दुद को खत्म कीजिए, अदम बर्दाश्त के रवैये को खत्म करें। हम आपके साथ खड़े हैं। इसी तरह मैं ये भी कहना चाहता हूं कि एक बड़ी मुस्बत बात रात हुई है कि जमात इस्लामी पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान बिजली के मामले पे, IPPs के मामले पर मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ है। अजीब बात यह है कि जो IPPs की सूरत हाल सामने आई है वो तकाजा करती है कि हम रिव्यू करें और कौम के ऊपर जो इजाफी बोझ है, जो गरीब आदमी बिल दे नहीं पा रहा है, हत्ता के मसाजिद और मदारिस के जो बिजली के बिल है इंतहाई मुश्किलात में है। बहुत सारे मदारिस इस महीने अपने बिल अदा नहीं कर पाए हैं। बहुत सारी मसाजिद इस महीने अपने बिल अदा नहीं कर पाई हैं। मैं वजीर आजम पाकिस्तान से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि पहले मरहले के अंदर मसाजिद के 50% बिलों को आप माफ करने का ऐलान करें। कम अज कम इजाफी टैक्स खत्म कर दे, बिजली का सिर्फ बिल ले लें। आप कौम से भी बिजली का बिल ही लेना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन पहले मरहले में हम ये गुजारिश करेंगे कि मसाजिद और मदारिस से जो बिजली इस्तेमाल हो रही है उसका बिल ले ले। ये जो इजाफी टैक्स है कम अज कम ये खत्म कर दें। ये काल अल्लाह व काल रसूलुल्लाह पढ़ने पढ़ाने की जगह है। यहां अल्लाह अकबर की सदा लगती है। मुझे बताइए, वो मस्जिद जो बिल अदा न कर सके जिसकी इंतजामिया, और वहां बिजली कट जाएगी, तो इसका बहरहाल किसी भी सूरत ये मुनासिब नहीं है। इसलिए कोई गुंजाइश निकाले, बेहतरीन रास्ता होता है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इससे हल निकलेगा। और वैसे भी वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हमेशा मुज़ाकरात की बात करते हैं। और मैंने तो चंद दिन पहले कहा था कि वजीर आजम साहब खुद आगे बढ़े और ये बिजली के मामलात हैं, गैस के मामलात हैं, महंगाई है, मुल्क के अंदर एक कौमी वहदत को पैदा करना है। हमारा दुश्मन जो हमें तकसीम करना चाहता है, कभी सुबाइयत के नाम पर, कभी लिसानियत के नाम पर, कभी फिरकावारियत के नाम पर। आपने देखा कि पैगाम पाकिस्तान ज़ाब्ता इखलाक की रोशनी में जब अमल हुआ तो ये मुहर्रम पुरअमन अंदाज से हुआ। जो एक भी वाकया तशद्दुद का नहीं हुआ, जो काबिल तहसीन है। इस पर हम अपने सलामती के इदारों, चारों सूबों की, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की पुलिस, इंतजामिया, अफवाज पाकिस्तान, उलमा, मशाइख, सबका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आखिर में एक बार फिर ये ऐलान करना चाहता हूं कि पूरे मुल्क के अंदर 1 अगस्त से 30 अगस्त तक पाकिस्तान के कौमी परचम मदारिस और मसाजिद पर लगाए जाएंगे। 14 अगस्त को कौमी परचम लहराया जाएगा हर जगह, और 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर जो है वो मनाया जाएगा। और कश्मीरी अवाम के साथ, फलस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने
वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसराइली रियासत को, इसराइली दरिंदगी को दहशतगर्दी और वहशत करार दिया है। ये काबिल तहसीन है। हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ वही मौक़िफ़ है जो अवाम पाकिस्तान का है, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जना का है। हमारी फ़ौज का मौक़िफ़ फ़लस्तीन के मसले पर वही है। जो लोग अफवाह साजी और फेक न्यूज़ के ज़रिए पाकिस्तान में इंतशार पैदा करना चाहते हैं, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले पर उसी मौक़िफ़ पे खड़ी है जो कायद आज़म मोहम्मद अली जना का था, जो पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ है। और इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से कोई तब्दीली ना आ सकती है ना आई है। आप पहले दोनों फैसला कर लें, ये सुन लें। दाईं तरफ पहले ये है, फिर दाईं तरफ है ये। देखिए, जो मुआहदे होते हैं, और ये मुआहदे चूंकि आलमी तनाजुर में किए गए हैं, तो लाजमी बात है कि लाहौर में चेयर पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में खून बह रहा है। पाकिस्तान मजबूत अफवाज होने की वजह से तमाम साजिशें नाकाम बना रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।